سردی کی شدت میں اضافہ، اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا ایک ہفتہ چھٹیاں بڑھانے کا امکان۔ والدین نے بھی سردی کی شدت میں اضافے کے باعث چھٹیاں بڑھانے کا مطالبہ کر دیا۔ والدین کا کہنا ہے کہ جنوری کے مہینے میں بیشتر پرائیویٹ اسکولوں نے پہلے ہی ایک ہفتہ زائد چھٹیاں دے رکھی ہیں۔ پرائیویٹ اسکول 8 جنوری سے کھل رہے ہیں۔ سرکاری اسکولوں کی چھٹیاں بھی 7 جنوری تک بڑھائی جائیں۔ دوسری جانب محکمہ تعلیم کے افسران کا کہنا ہے کہ چھٹیاں بڑھانے کا فیصلہ حکومت کی مشاورت کے بعد کیا جائے گا۔ سردی کی شدت میں اضافے کے پیش نظر یہ اہم اعلان کیا گیا ہے کہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا ایک ہفتہ چھٹیاں بڑھانے کا امکان ہے۔ والدین نے بھی سردی کی شدت میں اضافے کے باعث چھٹیاں بڑھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ تفصیلات جانیں گے، اپنے نمائندے جنید ریاض ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جنید، اپڈیٹ کیجیے گا اس حوالے سے۔ سردی اور سموگ بڑھ جانے کی وجہ سے چھٹیاں ایک ہفتہ مزید بڑھانے کا امکان ہے اور اس حوالے سے محکمہ اسکول ایجوکیشن نے مشاورت کا عمل جو ہے وہ شروع کر دیا۔ تمام ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز سے موسم کی صورتحال جو ہے مانگ لی گئی اور اس حوالے سے یہ بھی بتا چلوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے 1 جنوری کو جو ہے سموگ کی اور سردی کی شدت کا اور صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد جو ہے چھٹیاں مزید بڑھانے یا نہ بڑھانے کا اعلان کریں گے اس حوالے سے، لیکن مشاورت جو ہے وہ ابھی سے شروع کر دی ہے۔ سرکاری اسکولوں کی بات کی جائے تو وہ 2 جنوری سے کھلیں گے اور پرائیویٹ اسکول جو ہیں وہ 8 جنوری سے کھل رہے ہیں۔ اس حوالے سے والدین نے مطالبہ کیا کہ سرکاری اسکولوں میں بھی جو ہے ایک ہفتہ مزید چھٹیاں بڑھا دی جائیں تاکہ موسم اور سموگ کی صورتحال سے نپٹا جا سکے۔ جی جنید، یہ بتائے گا کہ یہ اجلاس کب منعقد کیا جائے گا، کب تک یہ فیصلہ سامنے آنے کے امکان ہے؟ کیونکہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ انہوں نے سیکٹری اسکول ایجوکیشن کی سربراہی میں اجلاس بھی منعقد کیا، لیکن اس حوالے سے جو حتمی فیصلہ ہے وہ پنجاب حکومت اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی مشاورت سے کیا جائے گا۔ اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ 1 جنوری کو جو ہے یہ اجلاس بلایا جائے گا اور 1 جنوری کو وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے اپروول دیں گے۔ اس کے بعد جو ہے محکمہ اسکول ایجوکیشن جو ہے وہ چھٹیوں کا نوٹیفکیشن جاری کرے گا، لیکن ابھی تک حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکا کیونکہ 1 جنوری کو جو ہے تمام تر صورتحال اور پنجاب میں جو سردی کی صورتحال ہے اور سموگ کی صورتحال ہے اس کا جائزہ لینے کے بعد جو ہے چھٹیوں کا اعلان کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جنید ریاض، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ میاں ویلی کے شہریوں کے لیے سال 2023 صحت کے حوالے سے بہترین سال رہا۔ ایم ایس ڈی ایچ کیو ڈاکٹر امیر کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی صحت کے شعبے پر خصوصی توجہ رہی۔ اس بارے میں مزید تفصیلات حاصل کریں گے اختر مجاز سے۔ جی بالکل، 2022 اور 2023 میں صحت کے شعبہ میں دیکھا جائے تو کتنی اچیومنٹ حاصل کی ہیں 2023 میں صحت کے جو افسران ہیں، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی ایچ کیو ہاسپٹل کے ایم ایس ڈاکٹر امیر احمد خان صاحب۔ آپ سے ہم اس سوال سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا 2023 میں کیا کیا آپ نے اچیو کیا اور کتنی بہتری آئی ہیلتھ میں؟ جی السلام علیکم۔ جی پہلے تو اللہ پاک ہمارے ملک پہ رحم فرمائے، 2023 کا اختتام آپ نے ہیلتھ کے شعبہ کو چوز کیا اختر بھائی، بہت اچھی بات ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی کچھ اچیومنٹس بتا سکیں۔ ہم نے ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی کلینکل سائٹ دونوں پہ ہم نے کام کیا ایز بار ڈائریکشن آف سی ایم پنجاب، سیکٹری ہیلتھ، چیف سیکٹری پنجاب۔ تو اس میں خوشی کی بات ہے کہ ہم نے وہ سب کچھ جو ڈائریکشن تھی سی ایم پنجاب کی وہ اچیو کر کے دکھایا ان کو، اور پنجاب میں ہم پہلے 5 اسپتالوں میں ہیں۔ جو بھی شعبہ آپ اٹھا کے دیکھیں گے اس میں ہماری بہت اچھی پروگرس رہی ہے۔ آپ ڈیولپمنٹ میں دیکھیں، یہ 1950s کا ہاسپٹل ہے، اس میں الیکٹرک ایشو، اس میں سیوریج کے بہت بڑے ایشوز تھے اور سیوریج کسی بھی سسٹم کا مین رول پلے کرتی ہے۔ ہم نے ساری سیوریج چینج کر دی ہے اس کی ایز پر ڈائریکشن آف سی ایم پنجاب، سیکٹری صاحب اور چیف سیکٹری صاحب، یہ سب کچھ ممکن ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے ہمارا زچہ بچہ سکینہ ہاسپٹل تھا جو ہم نے 1 کلومیٹر فاصلے پر اس کو شفٹ کیا، اس کی شفٹنگ میں ہم نے کمپلیٹ ان کو رینوویٹ کر کے دیا، اس کے بیڈ سٹرینتھ بڑھ گئی اور نمبر آف ڈیلیوریز اور سی سیکشن اور ادر پروسیجر گائنی میں وہ ٹرپل ہو گئے ہمارے۔ اور وہ یہ بات صرف کہنے کی حد نہیں ہے، وہ سٹیٹس آپ دیکھ سکتے ہیں اور وہ پورے پنجاب میں ریفلیکٹ ہو رہی ہیں۔ یو ایچ آئی جو پوری فوکس سی ایم پنجاب کا کہ پورے ہاسپٹلس کو یو ایچ آئی پہ لے کے آئیں، لوگوں کو فیسلٹیز دیں۔ ہم ٹاپ پہ ہیں ایز پر ڈیلیوری آف یو ایچ آئی، پرائمری اور سیکنڈری میں ٹاپ پوسٹ پہ ہیں۔ ہم نے اس کے علاوہ تھیلیسیمیا کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، تھیلیسیمیا لیب انشاءاللہ 2 دن میں کام شروع کر دے گی، جس سے سیل سپریٹر مشین ہماری ایکٹیو ہو جائیں گی، جس میں کمپوننٹس آف بلڈ
हम वार्डों के अंदर लोगों को लगाएंगे। नर्सरीज हमने रिवैम्प की, 70 बच्चे हम 2 नर्सरियों में अब रख रहे हैं, जिसमें तमाम तर सहूलतें हैं। सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम है, टैंक्स लगा दिए गए हैं, जिसकी वजह से रेवेन्यू 50% हमारा कम इस्तेमाल होता है ऑक्सीजन की मद में। सोलर सिस्टम एक्टिव हो गए, इसमें फोकस था गवर्नमेंट का, हमने मीटर इंस्टॉल करा लिए हैं, उससे इंशाल्लाह हमें काफी बचत होगी सोलर सिस्टम से भी। इसी तरीके से बिल्डिंग को रेनोवेट किया हमने, प्राइवेट रूम्स को रेनोवेट किया एज पर SOP ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। हमने डायग्नोस्टिक ब्लॉक में रेनोवेशन की और अब ट्रामा सेंटर भी शुरू कर दी गई है। इसी तरीके से हमारी लैब जो है पंजाब में पहली लैब है जो इस लेवल पे काम कर रही है कि हमारे पास टर्शरी लेवल के सारे टेस्ट हो रहे हैं। इसके अलावा जो भी आप इसके अंदर फील्ड देखेंगे, इंडोर फार्मेसीज देखें, आउटडोर फार्मेसीज देखें, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव था ड्रग अथॉरिटी का, जिसकी वजह से हमारी मेडिसिन की हद में बहुत बड़ी बचत हुई है। 50% कंजम्पशन नीचे आई है, क्योंकि इसमें प्रिविलेज नहीं है। उसमें जो भी इश्यूज थे उनको हमने बड़ा फोकस करके रिजॉल्व किया और हर वक्त 24/7 हर पेशेंट को अब मेडिसिन की अवेलेबिलिटी है। जैसे आपने जिक्र किया SK, एपोकाइन, ये सारे इंजेक्शन अवेलेबल हैं। आप वार्ड में चले जाएं, प्रायोरिटी पे हम इन लोगों को दे रहे हैं। हेपरिन लोगों को मिल रहा है, डायलिसिस के मरीज मुफ्त सहूलतें ले रहे हैं, थैलेसीमिया के मरीज मुफ्त सहूलतें ले रहे हैं, ब्लड बैंक अवेलेबल हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं अगर देखा जाए। और इसमें एडमिन ब्लॉक जिसमें आप खड़े हुए हैं, ये हमने रेनोवेट किया है DC साहब की खुसूसी काविश से। तो ये एक अचीवमेंट्स है हमारी। तो डेफिनेटली ये रनिंग हॉस्पिटल हैं, इनमें रोज बरोज नए से नए काम आते हैं, वो हम कर रहे हैं। लेकिन इस साल में ये जो टेनोर था, इसमें हमने बहुत बड़ी अचीवमेंट लिए हैं और निगरान सेटअप ने जो डायरेक्शन दिए हैं हमने फुलफिल किया और उनकी तरफ से हमें मैक्सिमम सपोर्ट रही है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने MS साहब की बात सुनी कि वज़ीर आला पंजाब, सेक्रेटरी हेल्थ, चीफ सेक्रेटरी की जानिब से हर सतह पर मदद जो है साथ रही है। और उसके अलावा अगर बात की जाए अचीवमेंट की तो इतनी लंबी फहरिस्त है कि उसको 1-2 मिनट में हम पूरा भी नहीं कर सकते। अगर बात की जाए सेहत के शोबा के हवाले से तो 2023 में 2022 की निस्बत शहरियों को सेहत के शोबा में ज़्यादातर और आसानी से सहूलियात मुयस्सर आती रही हैं। जी अख्तर मजाज, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान में बेफॉर्म के इजरा की पॉलिसी में तब्दीली का मामला, नादरा हुकाम की बेफॉर्म की फीस और पॉलिसियों की तब्दीली की अफवाहों की तरदीद। बेफॉर्म के इजरा की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं की गई। चंद हलकों की जानिब से इंटरनेट पर सामने आने वाले कुछ बयानात हकायक के मुनाफी हैं। अपडेट करते चलें आपको इस हवाले से कि मुल्तान में बेफॉर्म के इजरा की पॉलिसी में तब्दीली का ये मामला है। नादरा हुकाम की बेफॉर्म की फीस और पॉलिसियों की तब्दीली की अफवाहों की तरदीद। बेफॉर्म के इजरा की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं की गई। अपडेट करते चलें आपको कि बेफॉर्म के इजरा की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं की गई। चंद हलकों की जानिब से इंटरनेट पर सामने आने वाले कुछ बयानात हकायक के मुनाफी हैं। नादरा हुकाम की बेफॉर्म की फीस और पॉलिसियों की तब्दीली की अफवाहों की तरदीद सामने आई है। मुल्तान में बेफॉर्म के इजरा की पॉलिसी में तब्दीली का ये मामला है। महकमा सेहत की गफलत से जनूबी पंजाब में कई अस्पताल सहूलियात से महरूम हैं। मुजफ्फरगढ़ में साल 2023 के दौरान महकमा सेहत का कोई मेगा प्रोजेक्ट तो मुकम्मल ना हो सका, मगर सियासी खिंचातानी की वजह से 9 बार CEO हेल्थ को तब्दील किया गया। उधर ईसा खेल के THQ अस्पताल के इमरजेंसी इलाके की जरूरियात के लिए नाकाफी है। शहरी कहते हैं कि हादसात में इजाफे के बायस 16 बेड्स का ट्रॉमा सेंटर वक्त की अहम जरूरत है। साल 2023 में महकमा सेहत मुजफ्फरगढ़ के लिए तब्दीली का साल रहा। महकमा सेहत का कोई मेगा प्रोजेक्ट तो मुकम्मल ना हो सका, मगर सियासी खींचातानी की वजह से 9 बार CEO हेल्थ को तब्दील किया गया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की अपग्रेडेशन का मंसूबा भी इल्तवा का शिकार रहा। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने इस साल रजब तैयब अर्तवान और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा किया। उनके विजिट के बाद दोनों अस्पतालों में तरक्याती मंसूबों पर काम तेज किया गया। शहरी कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की अपग्रेडेशन वक्त की जरूरत है, जल्द अज जल्द ये मंसूबा मुकम्मल किया जाए। मुजफ्फरगढ़ में अगर इस THQ अस्पताल मेन हेडक्वार्टर है, इसे अगर बड़ा कर दें, सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे दे दें, तो मेरे ख्याल में मुजफ्फरगढ़ वालों को मुल्तान जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उधर मियांवाली की तहसील ईसा खेल के THQ अस्पताल में इमरजेंसी इलाके की जरूरियात के लिए नाकाफी है। इमरजेंसी सिर्फ 4 बेड्स पर मुश्तमिल है। मियांवाली बन्नू रोड पर हादसात मामूल बन चुके हैं। अस्पताल के मौजूदा वार्ड्स में सिर्फ 25 बेड्स की गुंजाइश है। अस्पताल के 35 बेड्स पर मुश्तमिल नई डबल स्टोरी बिल्डिंग तकमील के आखिरी मराइल में है। ईसा खेल में मदर एंड चाइल्ड सेंटर मुकम्मल हो चुका है। अस्पताल को मद्देनजर रखते हुए 16 बेड्स का ट्रामा सेंटर वक्त की अहम जरूरत है। मुल्तान में पुलिस की जानिब से शराब फरोशों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी है। इस हवाले से SP कैंट अरसलान जाहिद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं।
इम्पोर्टेंट हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको कवर किया। बेसिकली इसके दो मकासद हैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ना। एक तो जो हर साल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इशू बनता था, ये क्रिसमस के मौके पर और न्यू ईयर नाइट जब करीब आती है कि आपकी ये जहरीली शराब से अमवात की शरह जो है वो बढ़ जाती है। अल्लाह का शुक्र है आपको स्पेशली इस चीज़ के बारे में सेंसिटाइज करना और आगाह करना ज़रूरी था कि इस साल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में इस तरह का कोई भी जो वाक़या है वो वकूअ पज़ीर नहीं हुआ। और उसकी इफेक्टिव वजह जो आरपीओ साहब सर सुहेल और हमारे जो सीपीओ हैं सर सादिक ने जो इसके बारे में इफेक्टिव एक पॉलिसी बनाई, उसकी वजह से हम उसको अच्छे तरीके से उसका सद्भाव करने में कामयाब हुए हैं। अब तक हमारे पास जो दिसंबर का महीना है इसमें 240 हम FIR जो हैं वो शराब के ऊपर दर्ज कर चुके हैं, जिसमें हमने लिकर सेलर्स को गिरफ्तार किया, जिसमें 241 बंदों को गिरफ्तार किया गया। इसमें 7400 लीटर देसी शराब हमने पकड़ी और 1700 लीटर लहन हमने इसके साथ पकड़ी। इसके साथ साथ जो 10 चालू भट्टियां थी यहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों में, उनको पकड़ा गया। अक्रॉस दी मुल्तान, पूरे के पूरे मुल्तान चारों डिवीजन्स में ये कार्रवाइयाँ की गई और अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं कार्रवाइयों की वजह से अल्लाह का शुक्र है कि इस दफ़ा इस क्रैकडाउन की वजह से जितने अच्छे तरीके से किया गया और जो भी इसमें लोग इन्वॉल्व थे उनके ऊपर कार्रवाइयाँ की गई, तो इसमें काफ़ी हद तक कमी पेशी आई है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लोगों के बारे में को इसके बारे में आगाह करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये कितना एक जो है वो कभी एक फेल है और जिसकी कीमती जाने। महकमा सिविल डिफेंस मुल्तान ने अपनी सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। साल 2023 में 750 से ज्यादा गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट्स और LPG बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां की गई और 20 लाख से ज्यादा जुर्माने भी किए। महकमा सिविल डिफेंस की सालाना कारकर्दगी का मजीद अहवाल जानेंगे हसन मलिक की रिपोर्ट में। सिविल डिफेंस मुल्तान की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। महकमा ने साल 2023 में गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट्स के साथ साथ शहरियों को हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए आगाही देने का भी सिलसिला शुरू किया। महकमा सिविल डिफेंस ने किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए आगाही सेशंस का इनेकाद किया। महकमा ने 750 से जायद गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स और LPG बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां की। 300 से जायद मुकदमात दर्ज किए और जुर्माने की मद में 20 लाख से जायद रुपए की रकम सरकारी खजाने में जमा करवाई। इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट अदारे, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ सब में हमने हर सेक्टर को हमने कवर करने की कोशिश की और माशाल्लाह बड़ी अच्छा एक ट्रेनिंग का हमारा विंग है जिनकी इमरान साहब जो हैं वो हेड करते हैं और ट्रेनिंग्स पे हम फुल फोकस हैं और 10,000 प्लस जो है वो हमने पर्सन्स इस ईयर में हमने ट्रेन किए हैं। साल 2023 में मुख्तलिफ ट्रेनिंग सेशंस में 10,000 से जायद शहरियों को हंगामी सूरत हाल से निपटने की ट्रेनिंग दी गई। चीफ इंस्ट्रक्टर फहीम इमदाद का मजीद कहना था कि 1000 से जायद रजाकारों को रवां बरस महकमा सिविल डिफेंस का हिस्सा बनाया गया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट के साथ हमने 750 प्लस जो इलीगल पेट्रोल यूनिट्स और LPGs थे उनके खिलाफ हमने कार्रवाइयाँ की और 450 प्लस जो हैं वो हमने FIR जो हैं डिफरेंट पुलिस स्टेशन में पूरे डिस्ट्रिक्ट में पूरे ईयर में हमने करवाई और इनमें जो कोर्ट की तरफ से फ़ाइन हुआ है वो 20 लाख प्लस जो है वो गवर्नमेंट के हेड में वो इस मद में जो है वो फाइन हुआ। सिविल डिफेंस अफसरान ने उम्मीद जाहिर की है कि आने वाले साल में भी गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट्स और माफिया के खिलाफ कामयाबी का साल होगा। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान। डीजी खान में जिमखाना क्लब के सालाना इंतखाबात 29 दिसंबर को होंगे। कमिश्नर ऑफिस में जनरल सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के उम्मीदवारों के साथ आगाही सेशन। कमिश्नर और सदर जिमखाना क्लब ने उम्मीदवारों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इलेक्शन कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन करीम बख्श ने ज़ाब्ता इखलाक से मुतालिक आगाही दी। कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर का कहना था कि इलेक्शन की ज़ाब्ता इखलाक की पाबंदी के लिए सख्ती की जाएगी। पोलिंग बूथ में मोबाइल ले जाने की पाबंदी होगी। इलेक्शन कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन करीम बख्श का कहना था कि असलहे की नुमाइश पर कानून के तहत कार्रवाई होगी। पोलिंग के अमल को शफाफ बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। मुल्क भर की तरह बहावल नगर में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कायद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी की तकरीब जिले सदर मलिक सलीम की रहायशगाह पर मुनाकिद हुई, जिसमें ओहदेदारों और कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तफसीलात बताएंगे कासिम अली शेख।
मुल्क भर की तरह बहावल नगर में भी साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी की तकरीबात का सिलसिला जारी है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला बहावल नगर के सदर मलिक सलीम की रिहाइशगाह पर जो है वो तकरीब मुनक्किद की गई है, जिसमें कुरान ख़वानी की गई और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की जो खिदमात हैं उन्हें खराज तहसीन भी पेश किया गया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है ज़िले सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मलिक सलीम साहब, उनसे बात कर रहे हैं। आज भी जो है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जो नज़रिया उसको लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान मैदान में हैं, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जिस तरह पाकिस्तान के गली गली करिया करिया शहर शहर में आज शोक की फिजा है। आज शहीद कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बरसी मनाई जा रही है। इस दफ़ा हमने भी लाड़काना की बजाय इधर बहावल नगर में ही बड़ा एक वसी अरेंज किया है और तमाम जियाले, तमाम ओहदेदारान, टिकट होल्डर इकट्ठे हैं और सब ने मिलकर फातिहा खानी की है, कुरान खानी की गई है और शहीद कायद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई है और अल्लाह ताला से ये दुआ की गई है कि आइंदा आने वाले वक्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब इस मुल्क के वज़ीर आज़म हों और चारों सूबों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमतें बने। जी बिल्कुल, ये थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला बहावल। बहुत शुक्रिया आपका। लिया में भी साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी मनाई जा रही है। ख़त्म नबुव्वत चौक लिया में पीपल्स पार्टी ने बेनज़ीर भुट्टो शहीद की याद में शमए रोशन की। तफसीलात बताएंगे जाहिद सरफराज। जी साबिक वज़ीर पाकिस्तान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की आज बरसी के मौका पर लिया के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ेर एहतमाम ख़त्म नबुव्वत चौक पर शम्मे रोशन की गई। यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यहाँ पर अगर बात डिप्टी जनरल सेक्रेटरी सूबा पंजाब मलिक रमज़ान भुल्लर से साथ साथ ज़िला सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मलिक रियाज हुसैन सामटिया और जहाँ पर उम्मीदवार सूबाई असम्बली फरीद खान मीरानी समेत दीगर यहाँ पर मुख्तलिफ कारकुनान है और ज़रान यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर रमज़ान भुल्लर साहब से बात करते हैं। मलिक साहब, आज के दिन यकीन और सुल्ता दिन है, तो क्या पैगाम देंगे सर आप? जी, हमारे लिए और हमारी कौम के लिए आज बहुत दुखी दिन है। 27 से 16 साल पहले जब हमारी बीबी शहीद को शहीद किया गया था, हमारे लिए बहुत बड़ा सदमा। अल्लाह पाक उनकी मफ़रत फरमाए और इंशाल्लाह उनका मिशन लेके उनकी टीम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर कारकुन इंशाल्लाह चलाता रहेगा और उनके मिशन पूरे होने तक इंशाल्लाह हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। जी, उम्मीदवार मैंने रमज़ान भुल्लर साहब की बात सुनी, उनका यही कहना है कि उनके मिशन तक हमारा जो हमारा प्रोग्राम है जारी है और जद्दोजहद जारी है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। मतलब साहब, आप क्या पैगाम देंगे आज के दिन? तकरीबन 7-8 साल से स्टडी सर्कल सैफुल्लाह खान, ज़हूर आलम साहब ये कंदीलें जलाते हैं, यहाँ पे बीबी की याद मनाते हैं और हमें हर साल ये दुख ताज़ा हो जाता है बीबी का। लिया में तमाम पीपल्स पार्टी आज यहाँ पर मौजूद है और ये दिन मना रहे हैं। दिन मनाया जा रहा है। सैफुल्लाह साहब, आप क्या पैगाम देंगे सर आज के दिन? 27 दिसंबर हमारे लिए एक बहुत अलमनाक दिन है, जब बीबी शहीद को रावलपिंडी में शहीद कर दिया गया। हम बीबी के गम में ये शमें जलाते हैं, बीबी को याद करते हैं, रोते हैं। जिंदा है बीबी, जिंदा है, जिंदा है बीबी। फरीद खान मीरानी साहब भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। खान साहब, आप क्या पैगाम देंगे सर आज के दिन? मेरा तो यही मिशन है और पैगाम है कि जिस तरह बीबी ने आप पर खुद का हमला हुआ कराची में, उसने परवाह नहीं की, वो लोगों में घुल मिल गए। उन लोगों को उन्होंने जाकर फौरन ताज़ियत की जो उस वक्त शहीद हुए। बाद लोग तो जो है ना लीडर तो कहलवाते हैं, लेकिन मरने के लिए जो ताज़ियत करने के लिए अपने वर्कर की वो उनको बुलवाते हैं कि आओ हमसे ताज़ियत हासिल करो। लेकिन बीबी वो खातून थी, वो चट्टान थी जो खुद गई और उसने अपनी मौत की परवाह नहीं की, किसी चीज की कोई परवाह नहीं की। इसी तरह हम भी उनके इस मिशन को इंशाअल्लाह ताला आगे लेकर चलेंगे और हम बीबी के हम अवाम में रहेंगे और अवाम के हकूक की बात करेंगे। बिल्कुल इस बात के अज़म का इज़हार किया जा रहा है कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बेनज़ीर भुट्टो के जो विजन था, जो मिशन था, उसको जारी रखने के हवाले से अपना जो किरदार है उसको जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। हज दरख्वास्त जमा करवाने की तारीख 31 दिसंबर कर दी गई। रेगुलर स्कीम के तहत 69,000 से ज़्यादा दरख्वास्तें वसूल हुई। 3,468 स्पॉन्सरशिप दरख्वास्तें वसूल हो चुकी। मुख्तलिफ बैंक से 7200 से ज़ायद दरख्वास्तें हो चुकी हैं जमा। 5,000 इजाफी दरख्वास्तें मंजूरी का फैसला कल होगा। अपडेट करते चलें आपको, हज दरख्वास्त जमा कराने की तारीख 31 दिसंबर कर दी गई है। रेगुलर सिस्टम के तहत 69,000 से ज़्यादा दरख्वास्तें वसूल हुई। 3,468 स्पॉन्सरशिप दरख्वास्तें वसूल हो चुकी हैं। मुख्तलिफ बैंक से 7200 से ज़्यादा दरख्वास्तें जमा हो चुकी हैं। 5,000 इजाफी दरख्वास्तें मंजूरी का फैसला कल होगा।
چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو نے اپنی سالانہ کارکردگی رپورٹ جاری کر دی۔ چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو نے اس سال 700 بچوں کو ریسکیو کیا، جبکہ 690 بچوں کو ان کے لواحقین کے حوالے بھی کیا گیا۔ تفصیلات کے لیے دیکھیں ملتان سے الشبہ آصف کی رپورٹ۔ چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو نے اپنی سالانہ کارکردگی رپورٹ جاری کر دی۔ چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو نے اس سال 700 بچے ریسکیو کیے، جبکہ 690 بچوں کو لواحقین کے حوالے بھی کیا۔ ملتان بیورو میں اس وقت لاوارث، گمشدہ اور بھیک مانگنے والے 60 بچے رہائش پذیر ہیں۔ ملتان سٹی میں زیادہ سے زیادہ بچے جو کسی بھی فارم میں وائلنس یا ابیوز کا شکار ہیں ان کو ریسکیو کیا جائے اور ان کی فیملیز ٹریس کر کے ان کو ری یونائٹ کیا جائے۔ ایٹ دا سیم ٹائم ہماری نیکسٹ ایئر کے لیے اور اس ایئر بھی یہ اسٹریٹجی ہے کہ ہم ایسے جتنے بھی کرمنل ہیں یا مافیا ہے یا پروفیشنلز ہیں جو بچوں کو امپلائی کرتے ہیں بیگنگ کے لیے، ان کے اگینسٹ PDNC ایکٹ کے تحت کرمنل پروسیڈنگز کروائیں اور ان کی کنوکشن کروائیں۔ اس کے لیے ہم نے اس سال بھی FIRs کروائی ہیں اور اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے۔ چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو ملتان کی ڈسٹرکٹ آفیسر شفاعت ظفر کا کہنا ہے کہ نئے سال میں چائلڈ پروٹیکشن محکمہ، پولیس، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور مختلف NGOs کے ساتھ مل کر بچوں کی بہتری کے لیے کام کرے گا۔ ہم نے ڈسٹرکٹ لیول پر ڈفرینٹ جو NGOs ہیں، ڈفرینٹ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں جیسے پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، ان سے MOU کیا ہے اور ڈرگز کے حوالے سے کہ ڈرگز میں کنٹرول کیا جائے اس حوالے سے بھی MOU کیے ہم نے تاکہ بچوں کی ہیلتھ اور ویلفیئر کو انشور کرایا جا سکے۔ سملرلی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی ہمارا لائزون ہے، تو بچوں کی جو فارمل ایجوکیشن ہے اس پہ بھی ہم بہت بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے ترجمان کا کہنا تھا کہ بیورو بچوں کے حقوق کے لیے ہر دم کام کرتا آیا ہے اور عوام کو آگاہی دینے کے لیے آئندہ سال میں بیورو کی طرف سے مختلف سیشن منعقد کروائے جائیں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ الشبہ آصف، روہی، ملتان۔ شجاع آباد میں وفاقی محتسب اعلیٰ کی کھلی کچہری سینئر انویسٹیگیشن آفیسر ڈاکٹر زاہد ملک نے لگائی۔ کھلی کچہری میں 60 سے زائد کیسز کی سنوائی ہوئی۔ اپڈیٹ کریں آپ کو اس حوالے سے کہ شجاع آباد میں وفاقی محتسب اعلیٰ کی کھلی کچہری، تفصیلات جانیں گے مصور انصاری سے۔ وفاقی محتسب نے آج ادھر کھلی کچہری لگائی، اسی حوالے سے 60 سے زائد کیسز کا سنوائی کی گئی تھی۔ سینئر انویسٹیگیشن آفیسر ڈاکٹر زاہد صاحب ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ سر، کیسے رہی آج کی کھلی کچہری اور اس کے اندر کتنے کیسز تھے اور کیا صورتحال رہی سر لوگوں کے؟ جی، آج 60 سے زائد کیسز تھے میپکو کے مختلف سب ڈویژنز کے اگینسٹ شجاع آباد میں۔ تو یہ میں اب اس میں بتاتا چلوں کہ وفاقی محتسب کے اس ویژن کے تحت کہ انصاف آپ کی دہلیز پر پروگرام کے تحت ہم ہر مہینے تقریباً شجاع آباد یا ریموٹ ایریاز کے اندر لوگوں کو سستا اور فوری انصاف مہیا کرنے کے لیے پہنچتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ متعلقہ لوگوں کو ایک تو کرایہ نہیں بھرنا پڑتا اور ان کے ہی علاقے میں پہنچ کے جب ہم ان کو وہیں سن کے متعلقہ افسران کو یہ دیکھیں، ممتاز سولنگی صاحب جو ایکسین ہیں اس ڈویژن کے، وہ خود بھی تھے، ان کی پوری ٹیم آ جائی ہوئی تھی۔ یہاں بیٹھ کے ہم نے 60 سے زائد کیسز سنے ہیں، ایک ایک بندے کا کیس سن کے اس کو موقع پہ ریزالو کیا ہے اور ان کو جو ڈیو ریلیف ہے، جن کے کنیکشن کٹے ہوئے تھے وہ فوری بحالی کا حکم دیا ہے، کسی انسٹالمنٹ کا ایشو تھا وہ فوری کروایا ہے یہاں بیٹھ کے حل، اور ان کو فوری انہوں نے انسٹالمنٹیں بھی بنا کے دے دی ہیں۔ مزید ایکسین وابڈا بھی موجود ہے ہمارے ساتھ، ممتاز سولنگی صاحب۔ سر، کیا صورتحال رہی ہے کہ کیا اس سے میپکو کو بھی فائدہ ہوتا ہے یا یہاں پہ شجاع آباد میں ڈاکٹر صاحب آ کے یہ سن رہے ہیں کمپلینٹس، تو ہم ہر دفعہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ یہاں پہ موجود ہوں اور لوگوں کو ریلیف دیا جائے۔ جی بالکل، لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے میپکو سمیت دیگر ادارے بھی، وفاقی ادارے جتنے بھی ہیں وہ ادھر موقع پہ موجود بھی ہوتے ہیں اور اسی حوالے سے جو ریاست کے اوپر جو اعتماد بحال کرنے کے لیے فوری طور پر ڈاکٹر زاہد ملک صاحب جو انصاف فراہم کر رہے ہیں اس سے۔ بہت شکریہ مصور انصاری آپ کا۔ نیوز اسٹوڈیو سے آپ تک کے لیے اتنا ہے۔